હાલો દોસ્તો, ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. ફરી વખત તમારી સાથે આવી ગયા છે ને આજે ખાસ નાયા ધોયા વિના નથી અને સોશિયલ મીડિયા આશ્રમ અમારા મુકેશભાઈ જો આ હું બનાવ્યું છે. મુકેશભાઈ આજે ગોવાયા થઈ ગયા છે એને નેટ બાંધી છે. હા હા, સવારના પોરમાં અને ધૂળ મટ્ટીમાં રમે છે. એને નાવાની કોઈ મહત્વાકાંક્ષા છે નહીં એનામાં, એટલે એનું જીવન એમનામ જ જીવ્યા કરે છે. તમે લાખ વખત કહો તો એક વખત સાંભળે, 1 લાખ વખત. અને આજના દિવસોમાં માણસોનું કહેવાનું એમ છે કે ભાઈ અમે આ કરીએ કે તે કરીએ, બરોબર. પણ માણસને પોતાને શું કરવું છે એમનું ઓલરેડી નોલેજ હોવા છતાંય તમને લોકોને ભયભીત કરશે. એક તો તમને રંજાડશે અને પ્લસ તમારા કામમાં વિઘ્ન ઊભું કરશે. બધી બેંક વાળાને બધાનો ટાર્ગેટ છે કે એકબીજાને પૈસા વાટે, એકબીજાને સારું બોલે, ખરાબ બોલે. મુદલ 4 માણસ જ્યાં નવરા પડ્યા ત્યાં એકબીજાની બુરાઈ કરવા. સાચી વાત છે. અને આ છે અમારો મુકેશભાઈ મહારાજ. પરણીને લઈ જાઉં કે હાથમાં નહીં આવું, ચોર 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 મારા ચાની સોનાનો અછોર. વાહ. તો મુકેશભાઈ કાંઈ ગીત ગાતા નથી ને આપણે વધારે એવું નથી, પણ બધા પ્રભુજી નાય ધોય અને તૈયાર થઈ ગયા છે. અને અત્યારમાં થઈ ગયા છે બપોરના 9 અને જમવાનું ઓલરેડી તમે જોઈ શકો છો. અમારે પરેશભાઈ અને આજે અર્જુનભાઈ બે મહેનત કરી રહ્યા છે. તો અને બધા પ્રભુજી શાંતિથી જો અહીંયા કોઈક રમી રહ્યા છે, કોઈક બાંધી રહ્યા છે. દાદા કેમ છો? દાદા બોલી નથી શકતા, સાંભળી નથી શકતા. બોલી તો શકે છે, સાંભળી નથી શકતા. અને આને કવરાવે રાખે છે અમારા કાઉભાઈ. અને લાલ દાદા બેઠા છે પાસે. આપણે લાલ દાદા પાસે પણ જશું અને જોશું, પૂછશું હું કરો છો. આ છે અમારા ભીમા અંકલ, બરોબર ને ભીમા અંકલ? चाय पिया? चाय पिया? सही बात है. और नाना धोना बाकी है? हो गया? तो लाल दादा ક્યાં જા? ભૂરાભાઈ, હે ભૂરાભાઈ, લાલ દાદા સરસ. અમારા લાલ દાદા આવી ગયા છે. લાલ દાદા ક્યાં જાવ છો? હાલો પકડી લો મારો હાથ. કેમ? મારી યારે તો બોલો. જોજો ત્યાં દાદર છે, મારો હાથ પકડી લો. લાવો હું બેહાડું તમને. અરે હાલો. કેમ એવું કરો? મારથી ભાગો છો કેમ? રિહાણા છો? કેમ નહીં? એકલા જાવ છે એમ? હે લાલ દાદા કેમ બોલતા નથી? લાલ દાદા, લાલ દાદા મારી બામ લાવો. હાલો. હા તો મને મારી યારે કેમ નથી બોલતા? બામ લાવો મારી. હા તો મને કેમ નો હાથ પકડવા દીધો? તો હે ઈ શું કરો છો? તો એને હું ગોથી શું થાય? મારા કાન થોડા બેરા થાય ને સારા થાય એમ. હા તો બામ નવી મંગાવી છે? નહીં. કેમ? નહીં છે તમારી જોડે? ના એ રે માર સાહેબ ક્યાં છે બતાવો. યા મી તમારા ગામમાં હોય, કામ બહાર ન હોય. પણ એ શું કામ કરો છો? એ ના એમ થોડી લેવાય. ઉપર લગાવી જાય ને એટલે થઈ જાય રેડી. હા આ બહુ સારી ખોટો ચાલ લગો નહીં, આમાં ઘણી છે. હે તો એવું કરવાથી સારું થઈ જાય. સંભળાય હમણાં તઈ નકર કોઈ રાખે છે ને? હું કામ નો રાખે? જો ઓલા દાદાજી નથી સાંભળી શકતા તો એ નથી રાખતા એને. મેં સારું રાખતે મેં તમે ને હા તમે બહુ રાખો હો. તો પછી એની વાત ના કેમ અમે નથી રાખતા લાલ દાદા તમારે? રાખે છે ને. તો શું કહેવા માંગો છો તમે? અમે તમારે સેવા નથી કરતા એવું? કરો છો ને તો આ જો આબિદ કાકા છે. આબિદ કાકાને અમે ઓપરેશન કરીને હા સર્વિસ છે ને? આબિદ કાકા હે બોલો 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 બોલો. લાલ દાદા મને કિટની આપો ને તમારી. માન નહીં જેવી કિટની આપો. જાઓ માન જેવી નથી. લાવો લાવો આપણે લાલો કિટની કાઢ લઈએ. હા કાઢ્યો જ નહીં. હાલો આશ્રમમાં કામ લાગશે પૈસા. હા ભલે લાગે. હે ભલે લાગે. એક તો આપો. એક કિટની હોય તો માણા જીવે. અડધી નહીં. થોડીક આપો ને. થોડીક નહીં. થોડીક આપી જો. લાવો. હવે તમારે 2 કિટની શું કરવી? મારે જઈ 4 જઈ 2 નહીં. 4 કિટની થોડી અંદર રહી. હે બોલો દાંત કાઢો માં. કિટની આપો મને. ભાઈ શું કીધું? મેં કીધું કયા ભાઈ? હરિભાઈ શું થાય તમારે? હરિભાઈ જો આવી જા. હરિભાઈ જો હરિભાઈ બોલો દાદા. હું થયું કાકા?
મને કાલ જવા દે એમ. હા કાલે જવા દેજો, ટેન્શન ના કરો. જો. પૈસા લેવા જવું છે ને, પાછો અહીંયા લઈ જઈશું હો. હે ને નરેશભાઈ લઈ જશે તમને કાલે હો. હે ને હમણાં ટાઈમ નથી રહેતો લાલ દાદા, આપણે જાવ હો, ઉપાધિ કરો માં તમે. હું મરી જાત તઈ. નહીં કિડની આપી દો પછી. લાવો તમારે જાવ છે હાક પર, મને કિડની આપો તમારે. તો દોસ્તો અત્યારે વાગી જશે બપોરના 10:30 અને આપણી વચ્ચે ખાસ મહેમાન આવ્યા છે. ઠેઠ કુકાવા ને કુકાવાથી આવ્યા છે અને આશ્રમની પૂરી વિઝિટ કરી. એનાથી થતો એટલો સહયોગ કર્યો. તો બસ આપણે એને પૂછી કે ત્યાંથી ઠેઠ આવી અને લોકો દૂર દૂરથી આવે છે, પણ અને કહેવાય ને કે પૈસા છે એ તો આપે જ છે, પણ નથી ઓછું છે છતાં પણ એને એમ થાય કે નહીં આપણે કરીએ, થોડામાં બી પણ થોડું કરી શકીએ. તો આપણે એની સાથે વાત કરી. શું નામ છે અંકલ તમારું? દકુભાઈ. તો તમને કેમ ખબર પડી કે અહીંયા આવી રીતનું કામ થઈ રહ્યું છે? અમે ફેસબુક ઉપર વિડીયો જોયો, હા, ત્યાર પછી પ્રેરણા મળે કે આપણે અહીંયા જઈએ. આપણે ત્યાં જઈએ એમ જોઈ. તો દકુભાઈ અને એમની સાથે ઘણા બધા લોકો. શું નામ છે તમારું વડે? વિક્રમભાઈ સાંગાણી, હા. નવા ઉજળા, કુકાવ તાલુકો. વાહ વાહ, અમે વિઝિટ લઈને ખૂબ સારું કામ કર્યું. પોપટભાઈ અને ટીમનું આ સરાહનીય કામ છે. હા હા, થેન્ક યુ. અને બધાને ફૂલ નહીં તો ફૂલને પાકડી, જે હેલ્પ થાય એ કરવી જોઈએ. સાચી વાત છે. શું નામ છે કાકા તમારું? દિનેશભાઈ સાંગાણી, વાહ. ઉજળા. વાહ વાહ. અને તો હું અવારનવાર તમારા વિડીયો જોઉં છું. હા, મને હા. એમ થયું કે નહીં આપણે ત્યાં જઈને જે કંઈ પણ ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી પણ હા. આપણે જઈએ અને કંઈક પણ કરીએ. સાચી વાત છે. કાકા તમે કેમ ના વાહ બેઠા? આ બધું જાવ હે કે ના એવું કઈ તમને એમ થાય કે હું ખાલી ખોટી વાત કરે, આવડા ને હાર અને કઈ કામ. શું નામ છે કાકા તમારું? પ્રવીણભાઈ સાંગાણી. એવું છે. વાહ. તો કેવો લાગ્યો તમને સોશિયલ મીડિયા આશ્રમ? તમે આખો જોયો અંદરથી? બહુ સરસ. અહીંયા લોકો રહી રહ્યા છે, બધા પ્રભુજી સાથે મુલાકાત કરી. કેવું લાગ્યું? મજા આવી? હા, મજા આવી. એમ ને. તો લોકોને જે પણ લોકો વિડીયો જોવે છે અથવા તો નથી જોતા, તો એ લોકોને એક જ એમ છે કે એક ફેરો આવો, જોવો, જાણો કઈ રીતનું આશ્રમ બની રહ્યો છે અને લોકો થકી લોકો માટે કામ થઈ રહ્યું છે. અહીંયા કોઈ પ્રોપર વ્યક્તિ માટે નથી થઈ રહ્યું, પણ બધા લોકોનું એવા વ્યક્તિ કે જેનું કોઈ નથી, આધાર નથી, એકદમ નિરાધાર છે, તો એવા લોકો માટે આપણે કામ કરી રહ્યા છીએ. તો અવશ્ય કરો, આશ્રમની મુલાકાત કરો. આશ્રમનું એડ્રેસ છે તમે મહુવાથી ભાવનગર હાઈવે ઉપર મીના હોટલની એક્ઝેક્ટ સામે. તો જ્યારે પણ તમે આ બાજુ નીકળો અવશ્ય આવજો અને બસ આવી રીતે વિડીયોને જોતા રહેજો અને તમારા દરેક ગ્રુપમાં શેર કરજો. और दोस्तों हमारे बीच आ गए हमारे संजय भाई और अभी बजे है दोपहर के 2:10 और हमारे बीच आ गए संजय भाई राजस्थानी और हम उनसे ही बात करेंगे क्या आप बात करना चाहते हैं, बराबर ना? कुछ ऐसी चीज़ें जो है मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा और दूसरा अब तक जो मैंने अपने इस देश से जो भी कुछ लिया है ना वो मैं इस सारे देशवासियों के साथ में शेयर करना चाहूँगा. बराबर. क्योंकि यहाँ से घर से निकलने के बाद जब मैं घर से निकल के बाहर आया ना तो मेरे पास कुछ करने को था नहीं. बराबर से. तो क्या है कि मैं माता वैष्णो देवी से लेकर के रामेश्वरम तक, बराबर, जो कि तमिलनाडु में है, तिरुपति बालाजी, सबरीमला और मल्लिकार्जुन, इधर सोमनाथ जी ये से लेकर के उधर आसाम में कामाख्या माता का मंदिर है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, वहाँ तक मैंने यात्रा की कर डाली. और एक नहीं, मैं कम से कम 2 राउंड लगा चुका हूँ मैं ऐसे पैदल. तो क्या है, मुझे कई बार रास्तों में कई ऐसे ज्ञानी महाराज मिले तो उन्होंने मुझे कुछ सिखाया, मैंने सीखा. तो जो भी कुछ मैंने सीखा ना, तो वो सब चीज़ क्या है कि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ. सबसे पहले क्या है कि भाई एक चीज़ होती है भरोसा. कई लोग क्या है कि बोलते हैं कि भाई यार अगर मंदिरों में ऐसा होता या फिर ऐसा होता वैसा होता, शक्ति होती, तो लोग डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? सही बात है ना. तो मैं उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, जो डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर की जब सारी दवाइयाँ ख़त्म हो जाती है, डॉक्टर की जब सारी डिग्रियाँ फेल हो जाती है, जब डॉक्टर का सब कुछ मतलब विद्या ख़त्म हो जाती है ना, तब लास्ट में पता है डॉक्टर क्या बोलता है? लास्ट में डॉक्टर बोलता है कि ऊपर वाले से दुआ करो. सही बात है. डॉक्टर भी आखिरी में भगवान पे जाता है. वाह. डॉक्टर का भी आखिरी हथियार जो है ना वो भगवान है. वाह. वो भगवान है. तो ये जो चीज़ होती है ना, मेरे को बताया गया
कि भाई डॉक्टर से ज़्यादा पावरफुल हम लोग हैं, हम लोग हैं पावरफुल। कुछ लोग देखो, कई लोग क्या है कि भाई बोलते हैं देखो वही दवाई आप दोगे, वही दवाई दूसरा डॉक्टर देगा, लेकिन क्या है ना, आपने दवाई दिया वो मरीज सही नहीं हुआ, वही दवाई दूसरे डॉक्टर ने दिया लेकिन वो मरीज सही हो गया। ये क्या होता है कि भाई इसका कारण ऐसा रहता है, विश्वास भी होता है और दूसरा ब्लड खून के अंदर होता है। अभी क्या है कि हमने नमक मिर्ची जो होता है ना किराना स्टोर से, एक तो मेरी माँ लेकर के आई, एक तुम्हारी माँ लेकर के आई, दोनों एक ही स्टोर से लेकर के आए, बरोबर। दोनों ही इंसान का रूप है, दोनों ने खाना बनाया। लेकिन क्या हुआ कि भाई जो मेरी माँ ने खाना बनाया ना उसमें इतना टेस्ट नहीं आया, बरोबर आपकी माँ ने बनाया उसमें टेस्ट आया, बरोबर। ठीक है ना। वही नमक मिर्ची हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर रसोई में, वही नमक मिर्ची संजीव कपूर भी इस्तेमाल करता होगा, जो कि अपने इंडिया का सबसे बड़ा शेफ है ना, वही करता होगा। लेकिन हम लोग डालते हैं साला टेस्ट नहीं आया, उसने डाला तो टेस्ट आया, क्योंकि उसके ब्लड में है। किसी किसी के ब्लड में ना हाथ में ऐसी चीज़ें होती है ना जो ऊपर वाला दे देता है कि जो भाई डालते ही स्वाद, वो नमक डालने के भी 5-5 लाख रुपए ले लेता होगा मुझे लगता है खाने में है ना, तो वो ऐसा रहता है। तो ये क्या है कि सबसे पहले तो हम लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है, हमारे घर के अंदर जो हमारा घर है, घर के अंदर आपको भी पता होगा, आप भी ध्यान करना, सब लोग ध्यान करना कि घर के अंदर क्या है ना कि हम लोग भगवान की जो तस्वीरें होती है ना उसको हम लोग मार्केट से खरीद के लेकर के आते हैं। लाने के बाद में क्या है, बड़े प्यार से खरीद के लेके आते हैं, लेके आते हैं, लाने के बाद में ना हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। गलती क्या करते हैं हम लोग, हमने लेकर के आए मार्केट से खरीद के, दिल से खरीदा है, श्रद्धा से खरीदा है, ठीक है, तो उसको दिल से और श्रद्धा से ही रखना है हम लोगों को। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो तस्वीर को खरीद के लेके आते हैं, ला करके ना दीवार में कील ठोक करके टांग देते हैं। ऐसे भगवान की तस्वीर को दीवार पे ना कील ठोक के नहीं टांगने का, ये गलत है। सही है। क्या करने का कि भाई एक कुर्सी या लकड़ी का क्या बोलते हैं हम लोग, पटिया, टेबल, एक टेबल या पटिया जैसी चीज़ें रखने का, वैसी चीज़ रखनी चाहिए और रख करके ना उस पर भगवान को बिठा के रखना चाहिए। अरे भाई मेहमान आता है तो हम उसको भी हम बिठाते हैं भाई, कील पे थोड़ा टांग देते हैं भाई, सही है, उसको भी हम लोग बिठाते हैं, ये तो फिर भी भगवान है भाई। और बोलते हैं कि भाई भगवान मेहमान दोनों चीज़ मिलाई गई है ना, कि भाई मेहमान भगवान समान है और भगवान मेहमान की तरह ही हुआ। और जब मेहमान आया तो सोफा पे, और जब भगवान को लेकर के आए तो कील पे टांग दिया, ये तो गलत हो गया ना भाई, गलत हो गया। वाह वाह, तुम जितना भगवान की इज्जत करोगे ना भगवान तुम्हें उतना ही इज्जत देगा, वाह, उतनी ही इज्जत देगा। ये मुझे नहीं पता था, ये मेरे को किसी ने बताया कि भाई इस तरह से करना पड़ता है, तब जाकर के घर के अंदर शांति बनी रहती है। कील पे नहीं ठोकना। सही है, सही कील है। तो किसको ठोकते हैं, जो हम लोग चले गए, है ना, भगवान तो है भाई, सही बात, जो है इस दुनिया में, उसको हम कील पे कैसे टांग दें भाई। सही है, सही है, सही है, सही और है। एक चीज़ मैंने देखी है अपने यहाँ पर, अपने देश के अंदर, कि क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि यार मैंने मन्नत मांगी थी तो मेरी मन्नत पूरी नहीं हुई। मन्नत पूरी होगी। अभी जैसे कि भाई मैं जा रहा हूँ यहाँ से जूनागढ़ गिरनार जी, तो मैं गिरनार जी जा रहा हूँ, बरोबर। जैसे ही मैंने गिरनार जी के सीमा में मैंने प्रवेश किया ना, प्रवेश किया तो उस भगवान ने मेरे को वहाँ पहुँचते ही मुझे सब कुछ दे दिया, मेरे को सब कुछ दे दिया। वो ऐसी चीज़ है ना, वो कभी किसी को टालता नहीं है। तुम उसके पास गए हो ना तो वो तुमको उसी टाइम सब कुछ दे देता है। लेकिन क्या है, जिस जगह पे तुम गए हो ना उस जगह से ले करके तुमको वो चीज़ अपने घर तक पहुंचना है। लेकिन क्या है कि वहाँ से वो चीज़ ले करके ना अपने घर तक आदमी नहीं जा पाता। इसके पीछे कारण होता है। किसी ने मुझे बताया था कि जैसे कि हम मंदिर के अंदर गए, प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद सामने माता जी है, माता जी के सामने मैंने यूँ हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़ने के बाद मत्था टेका, मत्था टेकने के बाद मेरी जो मन में तमन्ना थी वो मैंने बता दिया कि माता जी मेरी ये तमन्ना है। माता जी ने मेरे को उसी टाइम दे दिया। अब देने के बाद हमको क्या करना है, देने के बाद ना हमको, जब मैं यूँ मुड़ूंगा ना, जब मेरी ये पीठ जो है ना, जब मेरी माता जी की तरफ मैंने कर दिया ना, उसके बाद से ले करके जब तक मैं अपने घर पे नहीं पहुंच जाता, मुझे वहाँ से ले करके ना, मंदिर से ले करके घर तक पहुँचने तक, जब मैं घर में पहुँच जाऊँगा, घर में पहुँचने के बाद में जो भी मेरी माँ है या बहन है, जो मेरे को घर में घुसने के बाद पहला आदमी नज़र आएगा, मुझे जा करके ना उसके पैर छूने हैं। मंदिर में माता जी को
फेस टू फेस मन्नत मांगने के बाद जब मैं यूँ पलटा मार लिया, जब मैं पलट गए ना, हाँ। उसके बाद से लेकर के ना वहाँ पहुँचने तक मुझे मुड़ के नहीं देखना है, बरोबर। मुझे मुड़ के नहीं देखना है। जब तक मैं उनके पैर नहीं छू लेता ना, हाँ। मुझे मुड़ के नहीं देखना है। और जब तुम वहाँ से निकल के आओगे ना, हम्म, तो तुमको कोई एक ऐसी, बोलते नहीं राक्षस शक्ति, कोई एक ऐसी राक्षस शक्ति होती है ना जो तुमको पीछे से आवाज़ मारेगी। तुमको ऐसा लगेगा कि तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें पीछे से बुला रहा है, पीछे कोई एक्सीडेंट हो गया है, कि तुम्हारा कोई अपना रिश्तेदार है तुम्हें आवाज़ लगा रहा है, लेकिन तुमको नहीं देखना है सही है। जब तक तुम घर नहीं पहुंच जाते। अरे भाई, जब हम लोग 1 महीना काम करते हैं, काम करने के बाद में जो हमारे हाथ में जो भी हमारी मेहनत की जो रकम होती है, जब वो हमारे हाथ में आती है तो हम क्या करते हैं, रास्ते में थोड़ा ना फेंक देते हैं, नहीं नहीं, हम अपने घर पे ले जाके अपने घर वालों को तो देते हैं। सही है। तो जो वो भगवान ने मुझे दिया है, जब तक तुम घर पे नहीं पहुंच जाते, जब तक तो तुम घर पे ले जाके तो रखोगे ना। तो और घर पे ले जा करके जब तक तुम अपनी माँ के पैर नहीं छू लेते, माँ बहन जो भी तुमसे बड़ा हो, बहन हमेशा हमसे बड़ी होती, चाहे उम्र में छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, लेकिन बहन की जो जितनी इज्जत करोगे उतना फ़ायदा रहता है। जब तक उनके पैर नहीं छू लेते ना, तब तक आपको ना यूँ पीट करके देखना नहीं है। सही है। लेकिन तुमको कोई ऐसी चीज़ होती है जो तुमको आवाज़ लगाएगी पीछे से, तुमको मुड़ने पे बोलेगा कि तुम मुड़ो, ऐसा लगेगा कि मेरा दोस्त मुझे आवाज़ लगा रहा है। और ये जो मैंने बताया ना क्रिया, ये क्रिया लाखों में जाके कोई एक आदमी कर पाता है, वाह सही है। सब नहीं कर पाते, वाह नहीं सही कर है। पाते। जो माता वैष्णो देवी है ना, वहाँ पर एक जूना मोड़ बोल करके एक आदमी था, उसको ये शक्ति माता जी ने दिया था, लेकिन वो पीछे मुड़ के देख लिया था, तो वो उसी टाइम उसका काम हो गया था, मर खत्म गया हो था। गया। सही है, मर सही गया है, था वो। सही है, सही है।